Hello students, how are you all? I'm sure you must be doing great. आज का जो ये वीडियो है इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के केसेस को स्टडी करने वाले हैं. जैसे कि तुम सबको मैंने पहले से ही इंडियन इकोनॉमी के केसेस जो हैं वो दे दिए हैं. सो मैक्रो में किस तरह के केस स्टडीज आ सकते हैं उसका आइडिया अगर आपको पहले लग जाए एग्जाम्स में जाने से, आई थिंक दैट विल बी अ लॉटरी फॉर एवरीबॉडी. So I have picked up the case number 1 from National Income Accounting, and the topic which I have picked up is circular flow of income. So let's proceed. So case क्या है? Let's see. ये देखिए, ये सर्कल आपके लिए नया नहीं है. आप सब इस सर्कल से familiar हो because it is part of your syllabus. So you may get such kind of information as a case. So this says, let's read the paragraph so that we get to know what are the kind of questions they are asking. In the figure given above, the uppermost arrow going from household to firm, ये देखिए ये household से firm, arrow का जो face है वो देखेंगे, household to firm, to undertake to buy goods and services, represents the spending the households undertake to buy goods and services produced by the firm. So the second arrow going from firms to household is the counterpart of the arrow. कैसे? ये जो firm से इधर आ रहा है, इन्होंने इनको goods and services दी. That is why household is spending money on those goods. It stands for the goods and services which are flowing from the firms to the household. In other words, this flow is what the household are getting from the firms, for which they are making the expenditure. In short, ये topic आपके syllabus का part है, but still I am supposed to read the whole paragraph. That is why I am reading. In short, the two arrows on the top represents the goods and services market. अब ये एक नया सा word लगा दिया. वैसे कुछ books में ये था भी, फिर भी हम इसे एक बार mark करते हैं. आपके exam में mark करना allowed नहीं है, but यहाँ आपको समझाने के लिए मुझे ये कुछ करना हुआ. The arrow above represents the flow of payment for the goods and services. The arrow below represents the flow of goods and services. The two arrows at the bottom. अब कौन से arrows की बात कर रहे हैं हम? ये वाले नीचे वाले. Factor services household देता है firms को और in return firms give payments to household. चलिए, at the bottom of the diagram similarly represent the factor of production market. Right? तो ये क्या नाम दिया इन्होंने यहाँ पर? Sorry. Wait a second, we will move to the question later. पहले ये ले लेते हैं factors of production market. यहाँ goods and services market कह रहा था. The lowermost arrow going from household to firm symbolizes the services that the household are rendering to the firms. Using these services, the firms are manufacturing the output. The arrow above this going from the firms to household represents the payment made by the firms to the household for the services provided by the latter. This is the sources from introductory macroeconomics textbook. तो ये आपकी NCERT बुक में से लिया गया है. अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं. Let's see the question number 1. What are the different factors of production? मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको पीछे पैराग्राफ में जाकर आपको पता होना चाहिए क्या है. ये तो हमें वैसे भी हमारा पार्ट है सिलेबस का. तो हम लिखते हैं जी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर व्हाट? यू रिमेंबर? लैंड, लेबर, capital and entrepreneur. Okay, so these are the factors of production as per the, but there are non-factors of production also, you remember, but हम यहाँ main पे concentrate करेंगे. So ये हो गया first question का answer. Let's move to the second. Differentiate between factor market and goods and services market. ये तो हमने अभी देखा है पीछे, जो मैंने mark करके दिखाया था. ये देखिए, goods and services market and factors of production market. लिखोगे कैसे? Goods and services markets are associated with the household, you know. यहाँ पे लिखा है household का flow है ये. Household is buying goods and services from the firms and in return they pay money to firm. This is what happens in goods and services market. This is what is happening in goods and services market. What is happening in factors of production market? It is associated with producer. And when producer hires factor services from the household and they give factor payments to the household is what is called, this is what happens in production market. So I'm sure आपको इन बातों का difference पता चल गया. तो आप इन दोनों में ये बात लिखने वाले हैं.
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं. सो लेट्स पिक अप अ पेन. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम फैक्टर पेमेंट्स? मुझे नहीं लगता इसके लिए भी तुम्हें पैराग्राफ देखने की जरूरत पड़नी चाहिए. जो ये फैक्टर सर्विसेज हैं, आप पहले तो लिखोगे अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज वट एवर यू पे इज वॉट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट. सो वॉट डू यू पे अगेंस्ट लैंड? यू गिव रेंट. वॉट डू यू पे अगेंस्ट लेबर? टू द लेबर, wages or salaries. What do we pay against capital? It's interest. And what do an entrepreneur take? Profit. So this is what is the factor payment. So this will be the whole answer. That means हो सकता है केस स्टडीज में बहुत बार आपको अपनी जो प्रायर नॉलेज लेकर आए हैं वो भी यूज करनी पड़े, जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में किया. क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें पता था, लेकिन हमें इसके आंसर को प्रेफर किया कि पैराग्राफ में से पिक करके लिख देंगे. आई एम श्योर देयर इज नो इशू. चलिए आज हम इसी वीडियो में एक और केस रिकॉर्ड करेंगे. दैट इज अगेन इट इज टेकन फ्रॉम नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड द टॉपिक इज जीडीपी अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ये आप पहले से वैसे जानते हो इस बात का आंसर, लेकिन लेट्स सी हमारा केस क्या दिखाता है हमें और हमसे क्या आंसर एक्सपेक्ट करता है. लेट्स मूव टू द केस नंबर 2. जीडीपी. ये देखो ये बंदा फ्लो कर रहा है जी, जीडीपी के साथ फ्लाई कर रहा है और ये बेचारे नीचे खड़े होके कुछ लोग उसे देख रहे हैं. पिक्चर ऑब्जर्व कर ली. अब हाउ यूनिफॉर्म इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी? कैन यू सी, कैन यू मेक आउट फ्रॉम द पिक्चर दैट हाउ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड? ओके. It still seems that majority of the people are poor and only some have benefited. ठीक है, हम अग्री कर जाते हैं. आगे देखते हैं. GDP and welfare. Again, this topic is taken from the textbook. Can the GDP of a country be taken as an index of the welfare of the people of the country? If a person has more income, he or she can buy more goods and services and his material well-being improves. So it may seem reasonable to treat his or her income level as his or her well-being. बिल्कुल सही है. So अगर उसके पास इनकम ज्यादा है तो वेलबींग भी उसका ज्यादा होगा. GDP is the total sum of value. ये जनरल पर्सन की बात की पहले इसने, अब कंट्री की बात कर रहा है. GDP का मीनिंग दे रहा है हमें सम टोटल ऑफ वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कब कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर. कब? इन अ पर्टिकुलर ईयर. आई एम श्योर यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ GDP. It gets disturbed among the people as incomes. It gets disturbed among the distributed among the people as income. कैसे? Retained earning को छोड़ के, क्योंकि वो तो भैया वो अपने पास रख लेता है. So we may be tempted to treat higher level of GDP of a country as an index of greater well-being. क्योंकि एक पर्सन की अगर इनकम ज्यादा, उसका वेलबींग ज्यादा, तो यहाँ कंट्री की इनकम ज्यादा, तो हम जानना चाहते हैं कि वहां के लोगों की भी वेलबींग ज्यादा होती है. तो ये वर्ड लिख दिया. टू अकाउंट फॉर प्राइस चेंजेस वी मे टेक द वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी इंस्टेड ऑफ नॉमिनल जीडीपी. नाउ हियर दिस इंफॉर्मेशन रियल जीडीपी इंस्टेड ऑफ नॉमिनल इज जस्ट टेकन एज द रेफरेंस. दैट इज वाई इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा. अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और हाउ आर वी गोइंग टू आंसर. लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. Is it reasonable to treat a person's income level as his or her level of well-being? ये तो था एक पर्सन की, यहाँ था it may seems reasonable. So it may seem reasonable to treat. Yes. तो अगर एक पर्सन की इनकम ज्यादा है, ये एक पर्सन की इनकम ज्यादा है तो उसका वेलबींग भी ज्यादा होगा. सो क्या ये रीजनेबल है टू ट्रीट अ पर्सन इनकम एज हिज और हर लेवल ऑफ इनकम? सो हम कहेंगे जी हाँ, ठीक है, क्योंकि पर्सन के पास अगर पैसा ज्यादा है उसकी वेलबींग ज्यादा होगी. इट मे सीम रीजनेबल. तो पहले का आंसर मिल गया हमें. ऑलराइट, चलिए मूव टू द सेकंड. इन द गिवन पिक्चर डू यू सी दैट ऑल द पीपल हैव बेनिफिटेड? आपको पिक्चर याद है? क्या आपको लगता है सभी को बेनिफिट हुआ है? इसका आंसर क्या लिखोगे? आई डिसएग्री या आप ना इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिख सकते हो. डू यू सी दैट ऑल द पीपल? I cannot see all the people benefited. I cannot see. No नहीं लिखना. No, they are not benefited. So variety लानी है words में. I cannot see that all the people have benefited as showing in the picture. Only few are benefited with higher GDP and majority of the people are lacking behind. इस तरह से आप अपनी लैंग्वेज को यूज करेंगे. चले आगे. चलो थर्ड क्वेश्चन. In the given picture, again picture से related है.
डू यू थिंक दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज यूनिफॉर्म? टेल मी. आपको लगता था? अब यहां लिखोगे नो आई डोंट थिंक सो. नो नहीं लिखना, ये दिस इज रूड लैंग्वेज. सो आई राइट आई डिसएग्री और आई एग्री. डू यू थिंक दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज यूनिफॉर्म? नो. सो आपने लिखा आई डिसएग्री because according to the picture the distribution of GDP is not uniform, it is benefiting only few. ठीक है राजे? So please अपनी लैंग्वेज जो है वो सॉफ्ट और अच्छी होनी चाहिए. हायर बच्चों की जो सीनियर मोस्ट क्लास है उनकी लगनी चाहिए. डू यू थिंक दैट जीडीपी इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर? मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको पीछे जाके आंसर चाहिए, ये तो आपका लिस्टेड क्वेश्चन है. क्या आपको लगता है जीडीपी एक ट्रू इंडिकेटर होता है? आपके पास आंसर है इसका. कैसे? बोले नहीं ये तो नहीं होता. सो आई रिफ्यूट द स्टेटमेंट. आई रिफ्यूट, वेराइटी ले आए. I refute because GDP is not a true indicator of welfare because it does not include, you remember, non-monetary exchanges को तो वो लेता ही नहीं है. और क्या याद है आपको? headings externality and then distribution, right, composition, ये सब points. अब डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आएगा. अगर ये 6 मार्क्स का केस स्टडी है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी होगी. 3 मार्क्स में आप सारे पॉइंट्स नहीं दे सकते, लेकिन आप चाहते हो बताना टीचर को कि आई नो ऑल द पॉइंट्स. सो बुलेट्स बना के थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन. एनी 3 points out of this you make the bullet points and then give it, or you can make the headings and give the explanation. The headings I always suggest कि that's a nice way. ठीक है बच्चों? So this was all about second case which was taken from national income chapter. बिफोर यू रीच टू द पेपर मेरी कोशिश रहेगी कि आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट चैप्टर्स में से एक बार टैकल करके जाओ, ताकि वहां पर आपको एकदम से कुछ नया सा ना लगे. ऑलराइट, सो टेक केयर, डू वेल, प्रिपेयर वेल. बाय बाय.